بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم تمام دوستوں کو۔ آج جناب ہم جا رہے ہیں جناب سید گلزار حسین شاہ صاحب کو ملنے۔ پیر و مرشد کو آج ہم اچانک ملیں گے اور دیکھتے ہیں کہ انہیں کتنی خوشی ہوتی ہے، اور اسی طرح آج جی السلام علیکم پیر و مرشد۔ وعلیکم السلام۔ اور جی بس جی بس دیکھو کیسا چھاپا رہا آج تے تسی چھاپا ہی ماریا سانو بھیا اچانک ہی۔ ہاں جی اور بس جی شکر اللہ دا۔ اج میں کہ پیر و مرشد نوں جا کے ملنے ہیں۔ میرے بارے جناب کچھ ساڈے واسطے ٹائم کڈیا تے اچانک ہی ٹائم کڈ لیا۔ کیا بات ہے جی، کیا بات ہے۔ اسی طرح استاد محترم نے بہت ہی زبردست مہمان نوازی کی، اور اسی طرح انہوں نے کھانے پینے کا خوب انتظام کیا، اور اسی طرح میں تو کہتا ہوں کہ کیا بات ہے استاد محترم کی، سید گلزار حسین شاہ صاحب کی۔ اور کھانا بہت لذیذ تھا اور کھانا بہت ہی زبردست تھا، اور انہوں نے اس حوالے سے کافی اہتمام کیا تھا، اور اس موقع پر بہت ہی شاندار گفتگو بھی ہوئی اور طبیبوں کے حوالے سے۔ آج ہم اپنے مرشد پاک جناب سید گلزار حسین شاہ صاحب کے مطب پہ آئے ہوئے تھے، اور یہاں پر آ کر بہت ساری خوشی ہوئی، اور اسی طرح میں نے کہا کہ آج کیوں نہ ہو کہ اسی طرح ان کے دعا خانے کے جو معاملات ہیں ان چیزوں کو دیکھا جائے، اور اسی طرح پوری زندگی ان سے پوچھی جائے کہ آپ نے کیسے کیسے یہ تمام جو وقت گزارا، اور اسی طرح اس طب کے حوالے سے طب کی خدمت کی، تو یہ بھی سب پوچھیں گے۔ جی السلام علیکم پیر و مرشد۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور سنائیں سرکار، کیا حال چال ہے؟ ٹھیک ہے؟ شکر ہے الحمدللہ الحمدللہ جی، اللہ کا بڑا کرم ہے۔ جی پیر مرشد، کافی دنوں تو تواڈے ال آنا نہیں کر رہے سی، لیکن بہت ساری چیزاں جڑیاں سنوں بس کچھ ٹائم دی کمی، جس طرح اج کل بس تھوڑا جہا معاملہ گرمی دا بھی چل رہا ہے، اس وجہ تو تھوڑا جہا کوئی دقت پیش آئی، تے سرکار صرف اج تواڈے کولوں یہی چیزاں بارے پوچھنیاں نے کہ جس طرح کہ اسی ایک طالب علم، اور ماشاءاللہ تسی ایک اس فیلڈ دے وچ ایک نام کمایا، اور ایک تسی اچھا خاصا ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਰ و ਰਸੂਖ ਰੱਖਦੇ ਜੀ ਸਰਕਾਰ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਤਿਬ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਹਿਰ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ। الحمدللہ یہ ہمارا خاندانی جو ورثہ ہے جی جی، یہ تو ہمیں ملے گا ہی، کیونکہ باپ دادا سے جو ورثہ میں چیز ملتی ہے وہ تو کسی سے لینی نہیں پڑتی، بالکل وہ تو ہمارے خون میں شامل حال ہے، تو زیادہ تو ہم نہیں بات کھولیں گے، مگر الحمدللہ اللہ کا بڑا کرم ہے، شکر ہے، اس رنگ میں بھی وہ رکھے۔ تو اسی طرح جس طرح کہ آپ نے پچھلے دنوں بھی بات کی تھی کشتہ سازی کے حوالے سے، اور مختلف امراض پر آپ ایک اچھا خاصا عبور رکھتے ہیں، تو آنے والے جو لوگ ہیں، یا جس طرح میں آپ کے پاس آیا ہوں ابھی کچھ دن پہلے بات ہو رہی تھی، جس طرح آپ گردے کی پتھری کے حوالے سے کچھ کیپسول وغیرہ بناتے ہیں، تو اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ کیا اس میں بہترین کوالٹی ہوتی ہے، یا آپ کتنی جو اس کی مقدار دیتے ہیں، یا کیا کیا اس میں ہوتا ہے؟ الحمدللہ وہ ہمارا نسخہ جو ہے وہ بہترین نسخہ ہے، اس میں صرف 2 ہی خوراکیں دی جاتی ہیں، تو 2 ہی خوراکوں میں جیسی بھی پتھری ہو وہ انشاءاللہ ٹوٹ کے باہر آ جاتی ہے، اور مریض اس سے مطمئن ہو جاتا ہے جب وہ اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے، کیونکہ اسے پھر کہا جاتا ہے کہ پیشاب وہ بیکر میں کرے یا کسی برتن ایسے میں کرے جس میں وہ دیکھ سکے وہ ذرات، تو وہ اللہ کے فضل و کرم سے اسے وہ سامنے دکھائی دے دیتے ہیں کچھ دنوں میں، 2-4 دنوں میں ہی۔ آپ نے 4 سالہ کورس کس سن میں کیا، اور کتنی یعنی کہ وہی 4 سال یا اس سے بھی زیادہ ٹائم لگایا آپ نے؟ یہ تو جو کالج کی زندگی ہے جی جی، یہ ہم نے 1993 میں وہاں داخلہ لیا، اور 96-97 میں ہم فارغ التحصیل ہوئے۔ ماشاءاللہ صحیح۔ تو یہ سال جو تھے یہ استادوں کے پاس ہم نے گزارے، اور بہت اچھے ہمیں استاد ملے، جس طرح کے حکیم پیر سید سائم علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اور ان کے والد محترم جناب پیر سید محبوب علی شاہ صاحب
रहमतुल्लाह अलैह, उनके पास बैठ के हमें इल्म की तहसील का शर्फ हासिल हुआ। तो उनकी मेहरबानी से आज हम इस स्टेज पे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये आपने किस कॉलेज से किया था? ये गौसियत तिबिया कॉलेज दीपालपुर से हमने किया था। दीपालपुर से, बिल्कुल बिल्कुल सही। तो ये सरकार, असल में मैंने ये पूछना चाहता था कि असल में कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं, जिस तरह के पहले भी बात हुई, आपने सैम अली शाह साहब, ये भी बात सच है कि वो आपसे काफ़ी मोहब्बत करते, सुनने में तो यही आया। हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। वो बहुत मोहब्बत वाले लोग थे, बड़े प्यार वाले लोग थे, और इसी वजह से आज जो भी हमारा स्टेज है वो उनकी मरहून मिन्नत है, उनकी मेहरबानियों से है। उन्होंने बहुत शफकत फरमाई हम। जी जी जी। और इसी के अलावा मुझे पता चला कि आपके जो बेटे हैं दोनों, माशाल्लाह उन्होंने भी इसका कोर्स किया, और इसी तरह उन्होंने साथ में पंसार भी साथ कर रहे हैं वो। जी जी अल्हम्दुलिल्लाह। ये जो ख़ानदानी सिलसिला है ये टूटना नहीं चाहिए, ये हम जोड़ के रख रहे हैं। जैसा हमने अपने बाप दादा से ये काम सीखा, आगे हम अपनी औलाद को भी हम सिखा रहे हैं, और इल्म की तहसील जो है वो मुकम्मल होनी चाहिए बंदे की। जी बिल्कुल सही हो गया। लेकिन आज तो जिस तरह पहले तो ग्रुपों में पास आया हूँ, तो कैसा लगा आज ये छापा भी? बहुत मेहरबानी जी। ये मोहब्बतें हैं, ये प्यार है जो आप लोग हमसे करते हैं। तो ये आपकी मोहब्बत का एक अंदाज है कि आप चुपके से आए, और हमारे लिए ये बहुत अच्छी बात बायस है आप हमारे पास तशरीफ फरमा हुए। तो नाजरीन, एक मेन मकसद जो था वो इस तरह था कि उस्ताद मुहतरम के साथ मिल के मैं कुछ मेडिसन के हवाले से बात करना चाहता हूँ, कि जिस तरह गुर्दे की पथरी, और इसी तरह जिगर के हवाले से, शुगर के हवाले से, और जो छोटे बच्चे हैं उनके हराम मगज़ के हवाले से, जिस तरह अरक तहरीक नजफ 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। तो इस हवाले से पीरो मुर्शद से मेरी बात हुई थी, तो पीरो मुर्शद ने फरमाया कि आज इस बात पर भी इंशाल्लाह बात होगी कि जिस तरह के ये सब अद्वियात जो हैं, मैं इनके साथ आपसे पूछा कि जी अगर आपके पास टाइम है या इस तरह है, जो दोस्त भी मंगाना चाहेगा वो इसी हवाले से अभी कुछ बात चल रही है, तो इंशाल्लाह ताला वो भी हम बताएंगे कि ये कैसे आपको हासिल होगा, जो लोग नहीं बना सकते। तो सरकार, ये जो मेडिसिन के हवाले से मैंने तजवीज़ आपको दी है, आप इस पर नज़र सानी करेंगे? इंशाल्लाह जी, इंशाल्लाह। क्योंकि लोगों की जो खिदमत है उसके लिए तो हम बैठे हैं। तो जो परेशान हाल लोग हैं, हम उनकी खिदमत के लिए यहाँ बैठे हैं, हम हाजिर हैं। जैसे भी आप फरमाएंगे इंशाल्लाह बाफज़ल खुदा हम आपके साथ कंधे से कंधा मिला के चलने के लिए तैयार हैं। जी जी जी। तो ये इंशाल्लाह ताला अनकरीब, यानी जिस तरह के एक से 2 हफ्ते तक इंशाल्लाह ताला जो भी उसकी पैकिंग बनेगी, जो भी दोस्त अहबाब इसको मंगवाना चाहेगा, तो इंशाल्लाह ताला ये शाह साहब से रब्ता कर सकता है, मुझसे रब्ता कर सकता है। तो जो भी दोस्त इंशाल्लाह ताला इस हवाले से मंगवाना चाहेगा वो इंशाल्लाह उसको मिलेगी। और जिस तरह के आज इनके पास आए थे काफ़ी इनके मुरीदैन ने, और जनाब सरकार शाह साहब ने भी काफ़ी, आज तो लंगर पानी हो गया, और इस हवाले से भी मैं इनका शुक्रगुजार हूँ, और कुछ ख़ास बातें इंशाल्लाह मैं आगे जाके ज़रूर पूछूँगा। जी उस्ताद मुहतरम, जिस तरह कि आजकल लोग जो है वो मेहनत नहीं करते अच्छे तबीब बनने के लिए, पुराने ज़माने में बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की मेहनत की जाती थी, और ऐसे ऐसे लोगों के पास जाकर वक्त गुजारा जाता था कि जो अहले इल्म थे। तो आजकल जो मुजरबात के पीछे पड़े हुए हैं, कुछ लोग तशखीस नहीं सीखते, और जैसे कि आपको पूरी दुनिया देख रही है, तो इस हवाले में आपकी क्या राय, जो अच्छा तबीब बनने के लिए हमें क्या चीज़ करनी चाहिए? ये आपका सवाल बहुत अच्छा है। आजकल जितनी मेहनत हमें दरकार है, मेहनत हो नहीं रही इल्म तिब पे, तो नुस्खा जात पे जो भरमार है वही है। तो उस्तादों से भी कुछ नहीं सीखा जाता। जी जी। तो जो शागिर्द हैं वो शागिर्द बनने के लिए तैयार नहीं। वो कहते हैं कि भाई नुस्खा दे दो, शागिर्दी नहीं।
जी जी बिल्कुल ऐसा देखा गया और बहुत सारे ग्रुपों में ऐसा ही है। तो हमने देखा कि हमने जब उस्तादों के पास जो भी वक्त गुजारा, वहाँ मरीज आते थे, किसी की पट्टी हम खोल के देखते थे कि ये जख्म कैसा है, कल कैसा था, आज कैसा है, आज तीसरा दिन है, चौथा दिन है, आज कैसा है। तो हमें बखूबी अंदाजा हो जाता था कि ये जो मरहम हम लगा रहे हैं ये बहुत अच्छा खासा काम कर रही है। मगर आज ये चीज़ हमारे शागिर्दों में नहीं है, हमारे बहुत सारे उस्तादों में नहीं है, बस इसी चीज़ की कमी है, यानी प्रैक्टिकल नहीं है इनका। हाँ, प्रैक्टिकल तौर पे कोई इधर आने को तैयार ही नहीं है कि प्रैक्टिकल तरीके से कोई काम सीखा जाए, किसी काम को देखा जाए, किसी जख्म को देखा जाए, किसी मरीज की नब्ज को देखा जाए। जी जी इसके लिए कोई तैयार नहीं होता, बस कहते हैं कि नुस्खा जात दिए जाओ, बस नुस्खा जात दिए जाओ। जी पीरो मुर्शद, जिस तरह के एक आजकल के दौर में कहते हैं कि ये तबीब बनकर कुछ लोग तो पछताते रहते हैं, क्या आप अपनी ज़िंदगी से मुतमिन हैं ये इल्म सीखने और सिखाने में और लोगों की भलाई करने में और लोगों को एक अच्छा इलाज मुआवजा करने में फराहमी आपकी है, तो आप इस ज़िंदगी से मुतमिन हैं, खुश हैं? बहुत सारे तबीब तो कहते हैं कि जी हम इस क्यों आ गए इसमें, और क्या हमने ये इल्म तिब में किया। जिस तरह के आप कह रहे हैं कि आपके जो बड़े थे बहुत बड़े ज़बरदस्त किस्म के तबीब थे और उनके दोस्त भी बहुत अच्छे बड़े तबीब थे, इस हवाले से आने वाले जो लोग हैं इनको मैं बस यही कहूँगा कि जिस तरह आपने कहा कि जी हमें बहुत सारी मेहनत करनी चाहिए, तो एक सवाल है सादा सा जो मैंने पहले भी पूछने की कोशिश, आप इस ज़िंदगी से मुतमिन हैं, खुश हैं कि मैं एक तबीब होकर मुआशरे की खिदमत कर रहा हूँ और इसी तरह मुआशरे में जो दुखी इंसानियत है उसके हवाले से बहुत अच्छा काम किया आपने? जी हम मुतमिन हैं, अपने काम से मुतमिन हैं, अपनी फील्ड से मुतमिन हैं, अपने उस्तादों से मुतमिन हैं। तो हम जो काम करते हैं उस पे इंशाल्लाह मुतमिन होते हैं तो तब जाके ये काम बनता है। अगर मुतमिन ना होते तो हमें क्या जरूरत थी इस काम में आने की। नहीं, इस तरह जिस तरह के एक बंदा अपनी ज़िंदगी में बहुत सारी जो सहूलतें हासिल करना चाहता है, जी मेरे पास गाड़ी हो, मेरे पास एक अच्छी ज़िंदगी हो, मुआशी एक खूबसूरती हो, इस हवाले से मैं बात कर रहा हूँ। जैसे आपने बच्चों को पढ़ाया लिखाया इसी तिब के हवाले से, इसी तिब से कुछ लोग तो कहते हैं कि जी हमें तिब ने क्या दिया, तो इसी तरह लोग एक आम बोलते हैं कि जी हमें पाकिस्तान ने क्या दिया। भाई हमने पाकिस्तान को या तिब को हमने क्या दिया, इस हवाले से बात हो रही थी। हाँ, तो तिब को हमने क्या दिया है ये भी तो देखना चाहिए ना कि हमने कितनी मेहनत की है। तिब में कोई एक अनमोल चीज हमने कुछ सामने लाए हैं कोई, या वही मक्खी पे मक्खी मारे जा रहे हैं, ये भी तो होनी चाहिए ना कि मक्खी पे मक्खी तो मर रही है, ठीक है, मगर आपने क्या उजागर किया है। बेशक बेशक सही, देखना ये है। तो ये तो फील्ड है, समंदर है, ये दरिया नहीं, ये समंदर है जिसका दूसरा किनारा शायद नहीं है। तो इसमें मेहनत करनी चाहिए बंदे को, हर चीज अल्लाह पाक ने हमें अता की है। जी जी समझे, ये फील्ड हमारे बाप दादा से चली आ रही है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये जो कॉलेज का जमाना था वो भी हमने देखा, उससे पहले का जमाना था वो भी हमने देखा, आज जो है वो आपके सामने है, वो भी देख रहे हैं। जी जी बिल्कुल सही, अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन जमाने गुजरे, जो भी गुजरे सही। जी पीरो मुर्शद, जिस तरह कि मैं ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਤਜਰਬੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਔਰ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਤੁਸੀਂ ਅਦਬੀਆਤ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਬਣਾਈਆਂ ਵੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਹਰ ਤਬੀਬ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਹਤਰੀਨ ਇੱਕ ਤਜਰਬਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਕੋਈ ਮੈਡੀਸਨ ਦਰਿਆਫਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਜਿਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬਿਹਤਰੀਨ ਇਲਾਜ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦਰਿਆਫਤ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਬੜਾ ਯੂਨੀਕ ਜਿਹਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਬੜਾ ਕਲੋਜ਼ ਜਿਹਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜੀ ਜੀ ਕੋਈ ਮਾਲੂਮਾਤ ਦਿਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਬੇਬਾਰ ਤਜਰਬੇ ਕੀਤੇ ਹੋਣੇ, लेकिन सब तो ज्यादा किस बीमारी से ਤੁਹਾਨੂੰ अबूर हासिल? कोई ऐसी मर्ज जिस पे आपको अबूर हासिल हो। जी जी, तो कोई बंदा ये नहीं कह सकता कि किसी एक मर्ज पे अबूर हासिल है। जी जी, मगर उसके लिए जो तगोदो है वो बंदा कह सकता है कि हाँ मैंने फलां मर्ज के लिए तगोदो की। जी जी, तो मैंने जो तजुर्बात किए तगोदो की वो है चेस्ट ब्रेस्ट कैंसर जिसको कहते हैं। जी जी,
तो वल्लाहुल वो कैंसर में मुब्तला होती है मर्ज या नहीं होती, यानी उसका अटेस्ट हम हर बंदे आने वाले का हम अटेस्ट नहीं करवा सकते। जी जी। तो ये जो चेस्ट ब्रेस्ट कैंसर के जुमरे में आती है ना चीजें, जी जी। औरतों के चेस्ट में हो जाने वाला जख्म, दर्द, जलन, गिल्टी, जी जी। तो इस चीज पे जो अबूर है वो मैं तो नहीं कह सकता कि मुझे बहुत अबूर है, जी जी। मगर बहुत सारे ऐसे मरीज जो आज अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन जिंदगी गुजार रहे हैं, सेहतयाब हो गए, सेहतयाब हो के वो जिंदगी गुजार रहे हैं। सही। बहुत सारे ऐसे मरीज हमारे पास आए जिनको अल्लाह ताला ने शफाए कामला से नवाजा। अच्छा पीरो मुर्शिद, जी पीरो मुर्शिद, एक जिस तरह कि माशाल्लाह ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਛਾਤੀ ਦਾ ਕੈਂਸਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੁਝ। ਅੱਛਾ ਸਰਕਾਰ, ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ ਤਬੀਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਹਨਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਔਰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਦੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ, जिस तरह के एक बंदे को कहते हैं कि ये तजर्बा रखना चाहिए या कोई ऐसी, इस तरह क्या कहते हैं कि आप इस पर क्या हमें करना चाहिए कि जो नए लोग सीखने वाले हैं तिब को, जो आजकल कहते हैं कि जो अंग्रेजी या सब कुछ है लेकिन देसी इसमें कुछ नहीं, तो इस हवाले से आपकी क्या राय है? जी जी, बहुत शुक्रिया उस्ताद मोहतरम, जिस तरह कि तुसी इतना अपना कीमती टाइम देता और इसी तरह अज तकरीबन मेरा 3 बजे तो लैके शाम 7 बजे तक तुहाडे कोल ही और तुसी बहुत अच्छा तामन किया और बहुत अच्छा खाना खिलाया और आपके जो दोस्त थे ये जो आपके मुरीदान है इन्होंने बहुत अच्छा तामन किया और इसी तरह हमारे साथ बहुत ज़बरदस्त इन्होंने भी बहुत सारी चीज़ें ला कर दी। तो मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ, आपने इस गर्मी के अंदर बैठकर 1-2 दफ़ा बत्ती भी चली गई लेकिन आपने बहुत ज़्यादा, वो हमारा जो नुस्खा पहले भी हम बयान कर चुके हैं तो उसके इज्जा हम आपको बयान कर देते हैं फिर से। सरसों का तेल है 3 पाव, जी जी, 1 पाव जालिम है खुश्क, जी जी, 1 पाव रतन जोत है खुश्क। तो इन दोनों चीजों को तेल में जला लेना है। जी जी, जब ये जल जाए तो इसे ठंडा होने दें, नीम गर्म ही अभी हो तो ये कपड़े से पुन लें जी। जब कपड़े से आप पुन लें इसे ठंडा कर लें, ठंडा करने के बाद बोतल में डाल लें। जब बोतल में आप डाल लें तो 2 चम्मच कार्बोलिक एसिड जी जी और 2 चम्मच ही स्प्रिट जी जी इसमें डाल लें और हिला लें। बस ये तेल तैयार है। बिगड़े से बिगड़े हुए जख्मों के लिए ये बेहतरीन चीज़ है, इसे इस्तेमाल करें और दुआ में याद करें। जी बहुत शुक्रिया आपका, आपने इतना कीमती टाइम हमें दिया और आपके शुक्रगुजार हैं कि आपने बहुत ज़्यादा टाइम दिया। और जाते हुए आप दोस्तों से क्या कहना चाहेंगे ये मुझे नहीं पता कि आपके दोस्तों का एक वसी हल्का है, तो आप अपने दोस्तों को जो पैगाम देना चाहते हैं वो दें और इंशाअल्लाह ताला आपकी बातों पर अमल होगा। दोस्तों को हम यही कहना चाहेंगे कि ये जो तिब है जहाँ से हम रोजी रोटी भी चला रहे हैं, जिसकी इज्जत से हमारी इज्जत है, उस पे बहुत सारा भी काम होने वाला है। तो खुदारा इस पे मेहनत करें। इस पे मेहनत करेंगे तो हमें भी इज्जत मिलेगी, अजमत मिलेगी और यही सबसे बढ़कर दौलत है। वस्सलाम। हकीम सैयद गुलजार हुसैन शाह, फराह महमूद बूटी, ढाका की नगरी, लाहौर, पाकिस्तान। जी वालेकुम सलाम। चैनल को सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कीजिए और अपनी राय का इजहार ज़रूर लिखें।